Hello guys, welcome back to LPCA classes by CA Rajesh Khanna। फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक बार कुछ और न्यू क्वेश्चंस related to labor variances. So this will try to understand the concept of labor variances through Jhule Jhule Lal Damast Kalandar. So again I thank my guru Mr. Vijay Gandhi, Vijay Bhaiya, through whom I have learned this topic. तो आपने देखा लेबर वेरिएंसेस में हमारे 6 वेरिएंसेस होते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट दोज वेरिएंसेस आज वापस मेरा दिल कर रहा है थोड़ी सी इंग्लिश की शेरो शायरी करने का। तो मैं आपके लिए एक शेरो शायरी लेके आया हूं और ये रही वो शेरो शायरी आपकी स्क्रीन पर। नाउ दिस शेरो शायरी सेज इन अ लाइफ यू विल रियलाइज दैट देयर इज अ रोल फॉर एवरीवन यू मीट। या दैट्स ट्रू, जिसको भी आप मिलते हो किसी ना किसी का कोई रोल तो होता ही है। सम विल टेस्ट यू, अच्छा ये बंदा कैसा है। सम विल यूज यू, जैसे आपके फ्रेंड्स स्कूल में ब्रेड पकौड़े की पेमेंट आपसे करवा के आपको यूज करते हैं। सो सम विल यूज यू, सम विल लव यू and some will teach you. You learn a lot from the people. I have at least learned a lot. But the ones who are truly important are the ones who brings the best in you. So please mind it, they are the rare and amazing people who remind you why it's worth it. मैंने तो रियलाइज किया है, शायद आप भी रियलाइज करेंगे। सो प्लीज beware of the people and careful of the people. So this is what I wanted to share. So always remember the people who get the best in you because they are the one and it's worth it. चलिए आज की शेरो शायरी हो गई, हमने आपको बोर भी कर लिया। अब हम इसके आगे आपके साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने फिर से आपके साथ बात किया। क्या बात किया? ये बात किया। नाउ just a second guys. No. Wait. All right. So we'll start with question 16 today with you. But before I start a question, I will do it presentation wise also, but I just want to revise the formulas. यमपुक 5, यमपुक में YM, P का क्या बन गया? रेट, क्योंकि वहां प्राइस वेरिएंस होता है, यहाँ रेट। बीड़ी जलैले बोले तो आइडल वेरिएंस, वहां मटेरियल का यूसेज होता है, यहाँ लेबर की एफिशिएंसी होती है, और कॉस्ट तो कॉस्ट रहता है। नाउ 6 बारी निकालना है तो लिखेंगे कितनी बारी? 5 बारी। ऐसा 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 ऐसा, और लास्ट वाला AR। वहां SQ हैश होता था, यहाँ ST हैश होता है। वहां भी RSM था, यहां भी RSM है। यहाँ डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल टाइम वर्कड एंड एक्चुअल टाइम पेड। तो मैंने फॉर्मूलाज लिख के छोड़ दिया। अब हम आपके साथ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्वीट 16 बोले तो क्वेश्चन 16। Now standard hours for producing two products A and B are 15 hours and 20 hours per unit. तो आपको पता है मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं आई प्रेफर when we have more than one type of labor, standard और actual का डेटा लिखें। क्वेश्चन कहता है the standard hours for producing two product A and B. Standard time required is 15 hours and 20 hours. Okay जी. Both the products are identical and the wage rate is same, which is 5 per hour. So standard rate, whether you produce product A or you ask the labor to produce product B, they will be paid at the rate ₹5 per hour. In a year, the 10,000 units of A and 15,000 units of B were provided। नहीं है बेटा, यहाँ पे होना चाहिए था produced, यानी आपकी एक्चुअल आउटपुट है 10,000 यूनिट्स। सो कैन आई से ST हैश for every 1 unit 15 hours are required, so how many hours will be required? मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। बाय डूइंग दिस मैंने इनडायरेक्टली एज्यूम किया एक्चुअल आउटपुट
is equal to standard output, and hence standard time becomes standard time for actual output. जरूरत पड़ेगी तो हमारा standard mix is the total of standard time. Now question says the total labor hours actually worked were 4,50,000 hours. प्लीज घबराना मत बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड their actual wage is 23 lakh. So 23 lakh represents actual cost, which is actual rate into actual time paid. But this included 7 rupees for 12,000 labor hours and 7 rupees 50 paisa for 9,400 labor hours. It means how much is the balance labor left? How much is the balance labor left? आज मैंने आपके लिए कुछ कैलकुलेशंस पहले से करके रखा है. 429,100 balancing figure to make the total 4,50,500. They are paid at the rate 5 per hour. सर ये तो आपने 3 grades of labor लिख दिया, यहां पे तो ये प्रोडक्ट लिखा था. तो टेक्निकली अगर आप देखो दोनों प्रोडक्ट का रेट सेम है. यानी व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रेड्स ऑफ लेबर, स्टैंडर्डली वी थॉट वेदर स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड, कोई भी अगर काम करेगा तो हम तो 5 रुपया ही देंगे. तो इस बार यहाँ पे रेट प्रोडक्ट वाइज नहीं दिया हुआ, ग्रेड वाइज दिया हुआ है. देखो तभी तो रेट डिफरेंट है. बट उन्होंने ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एक्चुअली में तो बताया. बट जब स्टैंडर्ड में आप ग्रेड निकालोगे, वेदर इट इज प्रोडक्ट ए और इट इज प्रोडक्ट बी, वेदर ग्रेड 1 इज वर्किंग और 2 इज वर्किंग और 3 इज वर्किंग, दे ऑल आर पेड एट द रेट 5 पर आवर. तो हमें फर्क नहीं पड़ता. तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि कैलकुलेशन कैसे होगा. तो अब इसको मैं ग्रेड वाइज ना सॉल्व करके टोटलिटी वाइज आपके साथ सॉल्व करूंगा, क्योंकि इवेंचुअली तो हमें लेबर वेरिएंस निकालना है, चाहे बेस्ड ऑन ग्रेड वाइज निकालें चाहे बेस्ड ऑन प्रोडक्ट वाइज निकालें. Question is over. We have to calculate labor cost variance, labor rate variance and labor efficiency variance. अगर आपको ये बात समझ आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला we actually produce, यानी इसने ये तो बताया नहीं स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी है, तो मैंने एज्यूम कर लिया स्टैंडर्ड आउटपुट इक्वल्स एक्चुअल आउटपुट, देयरफॉर ST becomes ST hash. नाउ अब हम इसको प्रेजेंटेशन वाइज सॉल्व करेंगे. लेबर कॉस्ट वेरिएंस विच इज SR into ST hash माइनस AR into ATP. एक बच्चा कहता है सर अब हमें टोटल वाइज निकालना है, प्रोडक्ट वाइज तो निकालना नहीं, तो क्या आप 5 into 4,50,000 कर सकते हो? मतलब बेटा बुक्स के आंसर मत देखना, बुक्स ने कैसे दिए, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है. क्योंकि बच्चों मैं प्रोडक्ट वाइज डेटा नहीं, ग्रेड वाइज इसका डेटा नहीं है, तो इसीलिए आई कैन नॉट ईदर कैलकुलेट इंडिविजुअली ईदर प्रोडक्ट वाइज और ग्रेड वाइज. सो आई विल डू इट टोटल वाइज. और AR into ATP आप बच्चों को पता है is called actual labor cost, which is already given in the question as 23 lakhs. So my labor cost variance becomes 50,000 adverse. सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों. क्या कहता है क्वेश्चन, क्या निकालिए? लेबर रेट वेरिएंस. नाउ जब अच्छा मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म्स लिख दिए हैं, पेपर में लिखते वक्त आपको बिल्कुल लंबा फॉर्मूला लिखना है. स्टैंडर्ड रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड सो ऑन. लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट पर आवर इनटू एक्चुअल टाइम पेड माइनस एक्चुअल रेट पर आवर इनटू एक्चुअल टाइम पेड.
मेरे पास दिया हुआ है, तो मुझे इस इंडिविजुअल ब्रेकअप की जरूरत नहीं थी। मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं एग्जाम में उसको देख के। एक बच्चा कहता है आर यू श्योर सेम ही आएगा, ये ले। मैं कहा बेटा, मैं कहा तू ये ले यार, तू क्या कहते हैं पंजाबी में, अपना रांझा राजी कर ले। ये आ गया 84,000, ये आ गया 70,500, और ये आ गया 21,45,500। इसको टोटल करो, आंसर सेम ही आता है। इसीलिए मैं कह रहा था इसको कैलकुलेट करने में अपना समय बर्बाद ना करे तो अच्छा है। Which is 22,52,500 minus 23 lakh, so 47,500 becomes your idle variance. अब मुझे बिना सॉल्व किए पता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस is the sum total of labor rate variance plus labor efficiency variance। तो मेरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पक्की बात है 2,500 एडवर्स आएगा, which is SR into ST hash minus SR into ATP। Why should I waste my time when I have already calculated it? आप भी एग्जाम में ये शॉर्टकट मार सकते हैं, आप भी एग्जाम में ये शॉर्टकट मार सकते हैं। तो आपका रिकॉर्ड हो गया आज का फंडा। क्वेश्चन 1 जो मुझे आपके साथ करना था, कॉल्ड लेबर वेरिएंसेस, वेयर आई एम नॉट एबल टू डू इट ईदर प्रोडक्ट वाइज और ग्रेड वाइज, एंड हेंस आई एंड अप डूइंग इट टोटल वाइज। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, बोले तो क्वेश्चन नंबर 17। नाउ 17 क्वेश्चन जब हम आपके साथ आज करेंगे, 17 क्वेश्चन जब हम आपके साथ करेंगे, आप रियलाइज करेंगे इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखिए मैंने आपको बोला था माय वीडियोस कवर नॉट ओनली फॉर द बीकॉम बट फॉर सीए, आईपीसीसी जिसको अब आप सीए इंटरमीडिएट भी कहते हैं, आईसीडब्ल्यू इंटरमीडिएट, एंड ऑल प्रोफेशनल क्लासेस। राइट, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट कॉस्ट, रेट, एफिशिएंसी, आइडल। बेटा यील्ड मिक्स भी मांग लेता, चलो होगा नहीं आता, देखते हैं। आपको पता है व्हेन आई हैव मोर देन वन टाइप ऑफ डेटा, मैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल का वर्किंग नोट बनाना पसंद करता हूं। इन अ फैक्ट्री 100 वर्कर्स वर एंगेज्ड एंड एवरेज रेट ऑफ वेज इज 5 per hour। स्टैंडर्ड रेट मुझे नहीं पता बेटा, ये स्टैंडर्ड रेट ग्रेड ए लेबर का है, बी का है या सी का है? सर सभी का है। ठीक कह रहा है मेरा बेटा। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर वीक आर 40 आवर्स। इट मींस एक हफ्ते में फैक्ट्री चलती है 40 घंटे। तो हर पप्पू काम भी कितने घंटे करता है? 40 घंटे। तो अगर यहाँ 100 वर्कर्स हैं, हर वर्कर ने 40 घंटे काम किया होगा, तो स्टैंडर्ड टाइम कितना लगा होगा? सर 4,000। क्योंकि हर एक पप्पू को, पप्पू का डांस साला 40 घंटे काम करना है, तो 100 घंटे में उन्होंने कितने घंटे काम किया? 4,000। देन क्वेश्चन सेज स्टैंडर्ड आउटपुट इज 10 यूनिट्स पर आवर। Standard output is 10 units per hour। It means वो क्या कहना चाह रहे हैं, 100 लेबर जब काम करती है एक, क्योंकि कंटिन्यूएशन में है बेटा स्टेप, 100 लेबर जब काम करती है 1 घंटा तो वो 10 यूनिट बनाती है। तो अगर वो 40 घंटा काम करेगी तो कितनी यूनिट बनाएगी? ल सुल्तान कर दे चढ़ाई, हम करेंगे लड़ाई, बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई। सो स्टैंडर्ड आउटपुट इज क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा इज 400 units। Now during a week the wages were paid, यानी actually 50 workers were paid at the rate 5 per hour। actual rate, actual time, but actual time तो 2000 hours होगा ना बेटा, क्योंकि every labor has to work for 40 hours।
10 लेबर्स एट द रेट 7 पर आवर, एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है बच्चों, 10 लेबर्स एट द रेट 7 पर आवर एंड देन 4 कितनी लेबर है, 40 वर्कर्स एट द रेट, कितना रेट, 40 वर्कर्स एट द रेट 4 पर आवर, यानी 1600, यानी एक्चुअल टाइम पेड हमारा आ गया जितना भी आ गया। सो फार सो गुड। अब हम जरा आगे चले, हमारे पास ग्रेड, नंबर ऑफ लेबर्स ए में, बी में, सी ग्रेड में, जैसे यहाँ 50 10 40 दिया है, नहीं दिया। पता है क्यों नहीं दिया, क्योंकि सबका रेट सेम है। तो मैं इसको इसी की तरह 50 10 या 40 लिख दूं, या डायरेक्टली 5 इंटू 100 लेबर लिख के, और हर लेबर को कितने घंटे काम करना है, 40 घंटे, यानी 4000 एक साथ लिख दूं, बात एक ही है। तो अगर आप डिवाइड करके भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा दैट जो एक्चुअल में ग्रेड ऑफ लेबर थे स्टैंडर्ड में भी उतने हैं, बस रेट अलग है। स्टैंडर्ड हमने सोचा था 5 रुपए प्रति घंटा, जबकि एक्चुअल में कुछ लेबर्स को 5 की जगह 5, 5 की जगह 7 और 5 की जगह 4 दिया गया। तो 2416, सो फार सो गुड। तो हमारा ये बन गया स्टैंडर्ड मिक्स। और देखो ये बन गया, अभी देखते हैं क्या बन गया, अभी नहीं बताएंगे हम आपको। द फैक्ट्री डिड नॉट वर्क फॉर 5 hours। इट मीन्स इस क्वेश्चन में पहली बार मैं क्या करने जा रहा हूं, एक्चुअल टाइम वर्कड निकालने जा रहा हूं। इफ द फैक्ट्री डिड नॉट वर्क फॉर 5 hours, इट मीन्स एवरी लेबरर हैज वर्कड फॉर, बोलो बेटा, एवरी लेबरर हैज वर्कड फॉर 35 hours। एवरी लेबरर हैज वर्कड फॉर 35 hours। 1 मिनट रुक जाइएगा बच्चा पार्टी, लाइट हैज गॉन। इट मीन्स एवरी लेबरर हैज वर्कड फॉर 35 hours। तो मेरा एक्चुअल टाइम वर्क, guys 1 more second, sorry for अनुच्छेद खेद। It means every laborer has worked for 35 hours। It means, अब आप याद करना मेरी पहली क्लास, actual time worked should be given as first priority to calculate the actual mix। Is this point clear? I repeat, हमने जब आपके साथ formulas किए थे, if I share the formulas with you, I have written first priority should be given to actual time worked, so we will use actual time worked। now चलते हैं आगे बच्चों, भगवान हमारा भला करे। हमने यहां तक ये कुछ चीजें लिख ली। अब सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चाहिए, एसटी हैश। हमें इस क्वेश्चन के अंदर पुत्र क्या चाहिए, एसटी, हमें इस क्वेश्चन के अंदर पुत्र क्या चाहिए, एसटी हैश। नाउ एसटी हैश की जब हम बात करेंगे, हमारे इस क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट है 380 और स्टैंडर्ड आउटपुट है 400। तो कहने से जब मैं एसटी हैश कैलकुलेट करूंगा, जब मैं एसटी हैश रिकॉर्ड करूंगा तो माय एसटी हैश विल बिकम एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड टाइम। तो मुझे इस क्वेश्चन में इंडिविजुअली ग्रेड वाइज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका रेट सेम है। बट फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं सर अलग अलग निकाल दूं, इकट्ठा निकाल दूं, बात एक ही है। तो मैं आपके लिए इस बार
आपके लिए इस बार इसको इकट्ठा ही कैलकुलेट कर देता हूं। एक बार देख लेते हैं आपका डेली यूनिवर्सिटी कैसे करता है, हम वैसे ही फॉलो कर लेंगे। अगर आप देखें, उन्होंने लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालते वक्त इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं किया है, उनकी मर्जी है, क्योंकि वो कहते रेट सेम है तो अलग क्यों करे, बट हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर लेते हैं। सो एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड टाइम, ए का, फिर बी का, फिर सी का। सो 380 डिवाइडेड बाय 400 into 2000, 400, 1600। सो फार सो गुड। अब आरएसएम पे आ जाते हैं। आरएसएम कहता है एक्चुअल मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड टाइम। एक्चुअल मिक्स हमेशा टाइम वर्कड का लिया जाएगा, अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स 4000 into standard time 2000, 400 and 1600. So it will be 3500 upon 4000 into 2000, 1750, 350, 1400। मेरे जो मेन कैलकुलेशंस है रेडी हो गई। आपको बस एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में दो बातें ध्यान रखनी है। एक, जब उसने बोला 100 वर्कर काम करते हैं और फैक्ट्री चलती है 40 घंटे, तो हर वर्कर को 40 घंटे काम करना है, इसीलिए 40 से मल्टीप्लाई किया गया। दूसरी बात, इस क्वेश्चन ने ग्रेड ऑफ लेबर एक्चुअल के लिए बताया, स्टैंडर्ड का रेट उन्होंने सभी ग्रेड का सेम रखा है, इसीलिए हमने एज्यूम कर लिया हमारे भी नंबर ऑफ लेबरर्स जो 100 थे, देखो इसका भी टोटल 100 और जो हमारा टोटल पहले से 100 दिया हुआ है, 100 का हमने ब्रेकअप सेम मान लिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरएसएम निकालते वक्त एक्चुअल टाइम वर्क शुड बी गिवन अ फर्स्ट प्रायोरिटी। अब तो क्वेश्चन फिनिश। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है सर? लेबर कॉस्ट, रेट, एफिशिएंसी एंड आइडल। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज एसआर इंटू एसटी हैश माइनस एआर इंटू एटीपी। और जिन बच्चों को याद है, दिस इज कॉल्ड रिकवर्ड कॉस्ट। नाम याद करने हैं, अभी से आगे काम आएंगे। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट। नाउ वन बाय वन भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक। हाँ, 555 and ST hash is given to me as 1900, 380 and 1520. 1900, 380 and 520। इसकी मुझे कैलकुलेशन आपके साथ आज करनी पड़ेगी। एक्चुअल में कितना था? 5, 2000, 7, 400, क्योंकि एक्चुअल टाइम तो ये आया ना बेटा, वो तो मल्टीप्लाई करके निकला, एंड 4, 16। हमारा कॉस्ट वेरिएंस कितना आ गया बेटा? अगर हम देखें, हमारा इस क्वेश्चन में लेबर कॉस्ट वेरिएंस आना चाहिए 200 एडवर्स। हमने कहाँ गलती की जरा देखते हैं। 1900 प्लस 20, 2800 नहीं हो सकता, वो हमारा 4000 था, ये 1520 था। 2000 इंटू 5, 7600,
20, ये मेरी गलती है बेटा, 1520 था, मैंने गलती से 520 लिख दिया। सो दिस इज इंडिविजुअली अगर कैलकुलेट करें 500 एडवर्स, 900 एडवर्स, 1200 फेवरेबल। सो हमारा टोटल आ गया 200 एडवर्स। और हमें क्या निकालना है? लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस इज SR इंटू ATP माइनस AR इंटू ATP। अब AR इंटू ATP तो ऊपर से ही चीटिंग मार लेता हूं, वाई शुड आई डू द कैलकुलेशन अगेन एंड अगेन? SR इंटू एक्चुअल टाइम पेड 0, 800 एडवर्स, 1600 फेवरेबल। तो हमारा लेबर रेट वेरिएंस आ जाएगा, हमारा लेबर रेट वेरिएंस आ जाएगा 800 फेवरेबल। पक्की बात है, मेरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आप लोग बताओ कितना आना चाहिए? मेरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना आना चाहिए, मैं बताऊं? आइडल प्लस रेट प्लस एफिशिएंसी, नहीं यहाँ पे नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर हम बाकी वेरिएंसेस नहीं निकाल रहे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। नाउ एग्जाम में मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, उसने टोटल आइडल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस नहीं पूछा, उसने आपसे पूछा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल टाइम वर्क। अगर आप फॉर्मूलाज याद करें, मैं याद करा रहा हूं, ए माइनस सी या फिर ए माइनस डी, वो डिपेंड करेगा वेदर यू आर कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी वेरिएंस और यू आर कैलकुलेटिंग टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस। तो अभी साइलेंट है तो हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल टाइम वर्क। तो SR इंटू ST हैश हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज 9500, 1900 and 7600, and SR into ATW, SR into ATW वो हमें निकालना पड़ेगा। और हमारा एक्चुअल टाइम वर्कड है 1750, 350 एंड 1400, 1750, 350 एंड 1400। तो ठीक है, it is 750, so this is 750 favorable, 150 favorable and 600 favorable। तो हमारा टोटल आंसर आ गया 1500 फेवरेबल। हमारा टोटल आंसर आ गया 1500 फेवरेबल। तो हमने लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाल दिया, लेबर रेट वेरिएंस निकाल दिया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल दिया। अब क्या बचा? बीड़ी जलैले जिगर में बड़ी आग है। देखो मैं पढ़ते हुए ना ऐसे ही पढ़ता था, रीजन बीइंग नहीं तो पढ़ाई बोरिंग हो जाती है यार। पढ़ते हुए गाने ऐसे बीच में कुछ भी फालतू की बातें बोल लेता था, तो क्या होता था ना, मैं बोर फील नहीं करता था। लेबर आइडल वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन यील्ड मिक्स आइडल, एंड आइडल इज द डिफरेंस, अगर आप भूल चुके हैं, आइडल इज द डिफरेंस yield mix idle, idle is the difference between time worked and time paid। तो SR into ATW minus SR into ATP। now SR 555। सर ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? आप SR into ATW ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, आप SR into ATP भी एक्चुअली कैलकुलेट कर चुके हो। तो ठीक है मेरा बेटा, गलती होगी माफ कर दे, जान लेगा क्या? SR into ATW आप कैलकुलेट कर चुके हो, SR into ATP आप कैलकुलेट कर चुके हो, SR into ATW आप कैलकुलेट कर चुके हो, और SR into ATP आप कैलकुलेट कर चुके हो। तो आपका आइडल वेरिएंस आ जाएगा 2500 एडवर्स।
अब बच्चों एक छोटी सी बात सुनना, अगर आप पेपर में जल्दी में हो और आपको पता है इस क्वेश्चन में, ये आखिरी लास्ट नेल इन ए कॉफिन बता रहा हूं, आपको ये इंडिविजुअली ब्रेकअप करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में टोटल मार सकते हो। सर कैसे? इधर देखो, मेरा एस आर इंटू ए टी डब्ल्यू निकला हुआ, और सब बच्चों को पता है एस आर इंटू ए टी डब्ल्यू में ए टी डब्ल्यू का टोटल है 3500 माइनस एस आर इंटू ए टी पी का टोटल है, बोलो ना कितना, एटीपी कितना था, एस आर इंटू ई टी डब्ल्यू, एस आर इंटू ई टी डब्ल्यू वॉज 1700, 2100, 1400, 3500, और एटीपी कितना था हमारा एक्चुअल टाइम पे, 2 4 16 4000, तो 500 इंटू 5 हमारा इसमें आ गया 2500 एडवर्ड्स। तो आप डायरेक्ट आंसर रिकॉर्ड कर सकते हो। सो ये थी आपकी आज की क्लास। ऐसे ही हम आपके लिए प्यार भरे नगमे छोटे छोटे लाते रहेंगे, लाते रहेंगे, लाते रहेंगे। इन द एंड हम आपके साथ बात करेंगे आखिरी। सो ऑलवेज रिमेंबर, समवन विल लीव यू, समवन विल टीच यू, and someone will bring the best in you. So always love them. Bye bye, bye bye, and bye bye. See you guys on Thursday, same time, prime time. So if you like my videos, please like it, please like it, please like it.